गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 डेजर्ट एनिमल्स। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। डेजर्ट्स आर द ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन, बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर or for long periods in the scorching sun, so they have had find different ways of coping with the harsh conditions. For example, caribou spend the hottest part of the day in cool underground burrows, and strange insects called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. रेगिस्तान धरती पर सबसे शुष्क स्थान है और कभी कभी बारिश के बिना महीनों या वर्षों तक भी रहते हैं। लेकिन यहाँ तक कि रेगिस्तान के जानवर भी पानी के बिना या चिलचिलाती धूप में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्हें कठोर परिस्थितियों का सामना करने के विभिन्न तरीकों को खोजना पड़ा है। उदाहरण के लिए कैरबिल्स, रेगिस्तानी चूहा, दिन का सबसे गर्म हिस्सा ठंडी भूमिगत बिल में बिताते हैं, और गहरे रंग के भृंग नामक कीड़े, डार्कलिंग बीटल, अपने पैरों पर नमी की बूंदों को पकड़ने में विशेषज्ञ होते हैं। फिर उन्हें हवा में तब तक उठाते हैं जब तक कि बूंदें उनके मुंह में नहीं गिरती। There are more than 2,300 different kinds of snake around the world, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young in the dry rocky deserts of America. Lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away, and it can strike with lightning speed. सांप। दुनिया भर में 2300 से अधिक विभिन्न प्रकार के सांप हैं। सिर्फ 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से अधिक तक। अधिकांश सांप काफ़ी हानिरहित है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इतने जहरीले हैं कि वे एक इंसान को सिर्फ एक बार काटने से मार सकते हैं। अधिकांश सांप अंडे देते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो अपने युवा को जन्म देते हैं। सूखे में अमेरिका के चट्टानी रेगिस्तान में एक बहुत खराब प्रतिष्ठा के साथ एक डरावने सांप रहते हैं। इसकी भयावह खड़खड़ाहट को 30 मीटर दूर तक सुना जा सकता है, और यह बिजली की गति से हमला कर सकता है। But the rattlesnake, or rattler as it is sometimes called, prefers to avoid people if it is possibly can. It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. Like most snakes, it hears things through vibrations in the ground. If a person walks nearby, the snake can feel the movement, but if the same person were to shout, it would not hear a thing. Rattlesnakes are very common and widespread animals, living right across the American continent from Canada to Argentina. They feed on a variety of prey, including mice, voles, rats, chipmunks, and many others. Small animals, rattlesnakes kill their prey with venom. Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. लेकिन रैटल स्नेक या रैटलर, जैसा कि कभी कभी कहा जाता है, यदि संभव हो तो लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। यह अपनी पूंछ को सीधा रखते हैं, और जब भी यह परेशान होते हैं, अंत में खड़खड़ाहट करते हैं, इस उम्मीद में कि घुसपैठिया चला जाएगा। हालांकि अगर इसी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया जाता है और यह खतरा महसूस करता है या काटने के लिए तैयार कुंडल होगा, लेकिन
रटलर खुद शोर नहीं सुन सकता है जो उसकी अपनी पूंछ बनाता है। सांप के कान नहीं होते। अधिकांश सांपों की तरह यह ज़मीन में कंपन के माध्यम से चीज़ों को सुनता है। यदि कोई व्यक्ति सांप के पास चलता है तो वह कंपन को महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति चिल्लाता होगा तो वह एक बात नहीं सुनता। रैटल स्नेक बहुत आम और व्यापक जानवर है जो कनाडा से अर्जेंटीना तक अमेरिकी महाद्वीप में रहते हैं। वे कई प्रकार के शिकार करते हैं, जिसमें चूहे, गिलहरियाँ और कई अन्य छोटे जानवर भी शामिल हैं। रैटल स्नेक अपने शिकार को विष से मारते हैं। सभी सांपों की तरह वे दुर्भाग्यपूर्ण जानवरों को पूरा निगल लेते हैं। कुछ सांपों को सप्ताह में एक बार से अधिक खाना पड़ता है और कुछ, जैसे कि बड़े अजगर, खाने के बाद 1 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby, poking their noses into holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongooses are very amusing animals to watch. Common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes, and other small creatures. नेवला mongooses एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन वे हमेशा आसपास खतरनाक शिकारियों की तलाश में रहते हैं। अपनी नाक को बिल में डालना, तेज पंजे से चट्टानों को पलटना और ज़मीन को खरोच करना मंगोज देखने के लिए बहुत मनोरंजक जानवर है। अफ्रीका के कई हिस्सों में एक आम दृश्य वे भृंग, मिलीपैड और अन्य छोटे जीवों के लिए लगभग 20 के समूह में यात्रा करते हैं। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling, always on the lookout for danger. Hawks, eagles, and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. वे एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं। जब भी वे चट्टानों और झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलते हैं तो ट्विटर कॉलिंग के ज़रिए हमेशा खतरे की तलाश में बाज, चील और बड़े सांप एक विशेष अलार्म कॉल के साथ एक दूसरे को चेतावनी देते हैं यदि वे कुछ भी संदिग्ध देखते हैं। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. They continually make a nuisance of themselves until after a while, when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. Mongooses सांपों को मारने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध है, वो भी बिना खुद को चोट पहुँचाए। उनकी प्रतिक्रिया इतनी तेज़ होती है कि वे हर बार सांप के हमले से चकमा दे सकते हैं। वे लगातार सांप को तंग करते हैं। थोड़ी देर बाद जब सांप थक जाता है तो वे जल्दी से मारने के लिए पंजा लगा देते हैं। All the female mongooses have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. When most of the adults are out looking for food, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night. सभी मादा mongooses में लगभग एक ही समय में बच्चा होता है। वे पूरे समूह द्वारा एक पुराने दीमक की बाम्बी या खोखले लकड़ी के अंदर बड़े जगह में खड़े कर दिए जाते हैं। जब अधिकांश वयस्क भोजन की तलाश में होते हैं तो 1 या 2 नर उनकी देखभाल के लिए पीछे रहते हैं जब तक कि दूसरे रात के लिए वापस नहीं लौट जाते। ऊँट, in English camel. Another animal which lives in the desert is the camel. Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. In the wild, camels usually live in small groups of up to 30 animals. Camels have strong, long, shaggy winter coats to keep warm and shorter, tidier coats in the summer to keep cool. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all.
एक और जानवर जो रेगिस्तान में रहता है वह ऊँट है। कई हज़ारों साल पहले लोगों द्वारा ऊँटों को पहले पालतू बनाया गया था। जंगली में ऊँट आमतौर पर 30 जानवरों के छोटे समूहों में रहते हैं। ऊँटों को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में छोटे और साफ कोट होते हैं। लंबे झबरा कोट सर्दियों के लिए होते हैं और एक प्यासा ऊँट केवल 10 मिनट में 30 गैलन पानी पी सकता है, लगभग 500 पूरा ग्लास भर के। आमतौर पर हालांकि यह पेड़ पौधों से भी नमी प्राप्त करता है, जिससे रेगिस्तान में इसकी पानी की ज़रूरत कम होती है और बिना पानी पिए 10 महीने तक जीवित रह सकते हैं। There are two different kinds of camel. One known as the dromedary has only a single hump. The other is called the Bactrian camel and has two humps. The humps help the animal to survive in the desert by acting as storage containers, but they don't store water as many people wrongly believe they are full of fat. This fat nourishes the camels when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. There are many other ways in which camels are adapted to desert life. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. ऊँट दो तरह के होते हैं, एक जिसे ड्रोमेडेरी के रूप में जाना जाता है, इसमें केवल एक कूबड़ है। दूसरे को बैक्टीरियन ऊँट कहा जाता है, इससे 2 कूबड़ होते हैं। कूबड़ जानवरों को रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करता है, भंडारण कंटेनर के रूप में कार्य करके, लेकिन वे पानी स्टोर नहीं करते। जैसा कि बहुत से लोग गलत मानते हैं, वे वसा से भरे हुए हैं। यह वसा ऊँटों का पोषण करता है जब भोजन दुर्लभ होता है। यदि उनके पास कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं है तो उनके कूबड़ सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि वसा का उपयोग होता है। ऐसे कई अन्य तरीके हैं जिसमें ऊँटों को रेगिस्तान के जीवन के अनुकूल बनाया जाता है। उनके मुंह इतने सख्त होते हैं कि तेज़ कांटा भी नहीं चुभ सकता। इसी के संग हमारा चैप्टर ओवर हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।